اچھا جی، یہ وہ جگہ جہاں سے کند خنجر، ٹوٹی ہوئی تلواریں، نیزے ٹوٹے ہوئے ملے، اسی مقام سے مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کی کچھ ویڈیوز کافی دن سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں۔ اسلامی اتہاس میں ہر دور اپنی کہانی لے کر آتا ہے۔ کبھی کہیں ایمان کی مثال ملتی ہے تو کبھی ظلم کی حدیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے سامنے کنسٹرکشن کے دوران زمین کے اندر سے پرانی تلواریں، خنجر اور نیزے ملے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں 1400 سال پہلے کربلا کی جنگ لڑی گئی تھی۔ کھدائی لگ بھگ 12 میٹر گہرائی تک کی گئی تھی اور وہاں کی مٹی لال نظر آ رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مٹی خون سے رنگی ہوئی تھی، وہی خون جو امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے حق کے لیے بہایا تھا۔ کربلا کی اس خبر نے لوگوں کے دل پھر سے بھر دیے۔ جنہوں نے وہ نام سنا ہے انہیں پتا ہے کہ کربلا صرف ایک جگہ نہیں، ایک نشانی ہے سچ کی، صبر کی اور قربانی کی۔ لیکن اتہاس کا ایک اور رخ بھی ہے جہاں کربلا کی مٹی آج بھی انصاف کی یاد دلاتی ہے۔ وہی کبھی کبھی کچھ ایسے دور بھی گزرے جنہوں نے اس مٹی کو مٹانے کی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلم امت میں خلافت کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان 4 خلیفاؤں نے اسلامی دنیا کو انصاف اور امانت سے چلایا۔ پھر وقت بدلا اور سلطنتوں کا دور آ گیا۔ سب سے پہلے بنو امیہ کی سلطنت قائم ہوئی، جس میں یزید کا نام کربلا کی جنگ سے ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ یزید کی موت کے بعد بھی اس کے راہ پر چلنے والے لوگ رکے نہیں۔ اہل بیت پر ظلم جاری رہا، لیکن پھر ایک نیا انقلاب اٹھا، بنو عباس کی سلطنت۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ امیدوں کے ظلم کا انت کریں گے اور اہل بیت کو وہ حق دلائیں گے جو انہیں ملنا چاہیے تھا۔ لوگوں نے امید لگائی کہ اب انصاف کا دور آئے گا۔ بنو عباس نے ستہ سنبھالی اور کہا کہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی رکشا کریں گے۔ لیکن وقت گزرا تو سچائی کچھ اور نکل آئی۔ اسی عباسی سلطنت کے اندر ایک خلیفہ پیدا ہوا جو اتہاس میں بنو عباس کا یزید کہلایا۔ نام تھا المتوکل۔ رشتے میں یہ مشہور خلیفہ ہارون رشید کا پوتا تھا، مگر اخلاق اس سے پورے الٹے۔ جہاں ہارون رشید اپنے علم اور انصاف کے لیے یاد کیا جاتا ہے، وہی المتوکل کو اس کے ظلم اور نفرت کے لیے۔ اس نے اپنے دور میں اہل بیت سے رشتہ رکھنے والوں کو سزا دینے کا حکم جاری کیا۔ مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں اس نے ایسے گورنر تعینات کیے جو اہل بیت کے نام سے بھی نفرت رکھتے تھے۔ لوگوں پر اتنا خوف تھا کہ کوئی ان کی مدد کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اتہاس بتاتا ہے کہ المتوکل نے اپنے دور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو کئی بار تباہ کروایا۔ جب لوگ مٹی سے روزہ دوبارہ بناتے تو اسے ڈھا دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کل 17 بار کربلا کے مقام پر ہل چلوایا اور یہاں تک کہ پانی بہانے کا حکم دیا تاکہ قبر کا نشان مٹ جائے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کربلا کی مٹی کو مٹانا آسان نہیں۔ ہر بار لوگ چپکے سے آ کر قبر کو پھر سے تیار کرتے، پھر سے زیارت کرتے۔ کربلا کی ہوا میں امام حسین کا نام تھا جو کسی حکمران کے حکم سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ المتوکل کا ظلم صرف یہی تک نہیں رکا، وہ اپنے دربار میں بیٹھ کر اہل بیت کا مذاق اڑواتا تھا۔ اس کے مجلسوں میں شراب اور بے ادبی کا ماحول ہوا کرتا تھا۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ وہ خود شرابی تھا اور ہر رات ایسی محفلیں لگواتا تھا جہاں اہل بیت کی برائی کی جائے۔ کہتے ہیں کہ جس زمین پر وہ روزہ مٹانا چاہتا تھا وہی کئی بار اچانک خوفناک آفتیں آئی۔ عراق میں بھوکمپ، خراسان میں آندھیاں، آسمان سے اولوں کی بارش۔ لوگ کہتے تھے یہ ظلم کا انجام ہے، لیکن المتوکل نہیں رکا۔ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا خلیفہ مانتا تھا کہ کہتا تھا اسلام میں 3 ہی خلیفہ ہوئے، ابوبکر، عمر اور میں۔ اتنا اہم اور گھمنڈ آخر کب تک ٹک سکتا تھا؟ اتہاس گواہ ہے کہ ہر ظالم کا انت اسی کی زبان سے لکھا جاتا ہے۔ کربلا کی مٹی جہاں آج بھی خون کی گواہی دیتی ہے، وہی یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ ظلم کبھی قائم نہیں رہتا۔ جس زمین سے کبھی تلواریں نکلتی ہے وہی کسی دن ظالموں کی قبریں بھی دفن ہو جاتی ہے۔ المتوکل کا دور اسلامی اتہاس کے ان کالے پنوں میں گنا جاتا ہے
जहां ताकत के नशे ने इंसानियत की हर हद पार कर दी थी। ये वो वक्त था जब खलीफा खुद को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मानता था और जो उसके हुक्म के खिलाफ जाए उसे बगावत का मुजरिम समझा जाता था। करबला की मिट्टी को मिटाने के लिए उसने हर हद पार की। कहा जाता है कि जब उसने पहली बार इमाम हुसैन के रोजे को गिरवाया तो लोगों ने चुपचाप रातों रात दोबारा मिट्टी जोड़कर उस जगह को बना दिया। जब उसे पता चला तो उसने रोजे के चारों तरफ पानी बहाने का हुक्म दे दिया ताकि कोई दोबारा वहां खड़ा ना हो सके, मगर ये सोच उसकी नासमझी थी। लोग जमीन गीली होने के बावजूद आते और रो रो कर वही कहते, जिसको तू मिटाना चाहता है उसी का नाम जिंदा रहेगा। इतिहासकार लिखते हैं कि उसने ये काम सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि 17 बार किया। हर बार नाकामी उसके हिस्से में आई, हर बार जमीन से वही मिट्टी निकल आई जो उसे याद दिलाती थी हक कभी खत्म नहीं होता। अल मुतवक्किल की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने दौर में हिजाज के गवर्नर को लिखा, अगर कोई भी इंसान अहले बैत की मदद करे या उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो उसे सजा दो ताकि दूसरे लोग डर जाएं। इस हुक्म के बाद हालात ऐसे हो गए कि लोग अहले बैत के नाम से भी डरने लगे। कई घर तबाह हुए, कई परिवार बिखर गए। जो लोग पहले अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करते थे वो अब खामोश रहने लगे। इतना ही नहीं, अल मुतवक्किल ने गैर मुस्लिमों पर भी सख्त पाबंदियां लगा दी। यहूदी और ईसाई लोगों को मजबूर किया गया कि वो अपने कपड़ों पर निशान लगाए ताकि पहचान में आए। उन्हें घोड़ों पर सवारी करने की इजाजत नहीं थी और उनके घर मुसलमानों से छोटे बनाए जाते थे ताकि उन्हें हमेशा नीचा दिखाया जा सके। इतिहास में लिखा है कि इस खलीफा के दौर में हर तरफ डर का माहौल था। जो कोई उसके खिलाफ बोल देता उसे या तो जेल में डाल दिया जाता या फिर सीधा मौत दी जाती। उसकी अपनी जिंदगी भी अय्याशी और शराब में डूबी हुई थी। कहा जाता है कि वो हर रात नशे में रहता और सुबह उठकर अपने ही लोगों के खिलाफ फैसले करता। उसके महल में 4000 से ज्यादा कनीजें थी, जिनमें से एक हबशा यानी अफ्रीकी औरत थी जो उसकी सबसे पसंदीदा थी। अल मुतवक्किल उसे हद से ज्यादा चाहता था, यहाँ तक कि उसने तय किया था कि अपने बाद वही औरत का बेटा खलीफा बनेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि उसका असली बेटा अल मुंतशिर इस बात को सुनकर आग बबूला हो गया। अल मुंतशिर वो बेटा था जो कानूनी तौर पर अगला वारिस माना जा रहा था। वो जानता था कि अगर ये फैसला सच हो गया तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। और फिर वही हुआ जो जालिमों के घरों में अक्सर होता है। जुल्म की नींव पर खड़ी सल्तनत अपने ही घर से गिरने लगती है। अल मुंतशिर और उसके बाप के बीच झगड़े बढ़ते गए। एक दिन दरबार में सबके सामने अल मुतवक्किल ने अपने बेटे को गालियां दी, उसको सबके सामने बेइज्जत कर दिया और दरबार से निकाल दिया। उस दिन के बाद बाप और बेटे के बीच सिर्फ नफरत बची थी। अल मुंतशिर ने तय कर लिया कि अब वो इंतजार नहीं करेगा। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों से कहा, अब वक्त आ गया है कि ये जालिम अपने ही जुल्म का अंजाम देखे। उसने प्लानिंग करी। रात का वक्त तय हुआ जब अल मुतवक्किल अपनी महफिल में बैठा हुआ हमेशा की तरह शराब पी रहा था, वही उसके बेटे के लोग धीरे धीरे उसके महल की तरफ बढ़ रहे थे। उस रात महल में सिर्फ शोर और चीखें गूंज रही थी। दरवाजे टूटे, तलवारें चमकी और कुछ ही पलों में वो खलीफा जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था जमीन पर गिरा पड़ा था। अल मुंतशिर के लोगों ने उसे वही खत्म कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने अपने जमाने में हक की आवाजों को दबाया था। कहते हैं जब वो मरा तो महल के आसपास जमीन हिली और कई इलाकों में भूकंप आया। लोगों ने कहा यह करबला की मिट्टी का बदला है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अल मुंतशिर ने बेशक अपने बाप को मार दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो चैन से नहीं रह सका। सिर्फ कुछ महीनों में ही उसकी हालत बिगड़ गई और वो भी रहस्यमय तरीके से मरा। इतिहास ये भी कहता है कि जिस मिट्टी को उसके बाप ने बार बार खोदा था वही अब उसकी सल्तनत की हड्डियां दब चुकी थी। करबला ने फिर साबित कर दिया कि जो उस मिट्टी से टकराएगा वो खुद उसी मिट्टी में समा जाएगा। अल मुंतशिर के हाथों अपने ही बाप की मौत ने अब्बासी सल्तनत की बुनियाद हिला दी। जिस सल्तनत को लोग कभी इंसाफ की उम्मीद समझते थे वो अब खौफ और बेचैनी का दौर बन गई। अल मुतवक्किल की मौत के बाद दरबार में हर चेहरा डरा हुआ था। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। जिसने भी जुल्म देखा था वो जान गया था कि अब बारी किसी की भी आ सकती है।
अल-मुंतशिर ने सिंहासन तो हासिल कर लिया, लेकिन सल्तनत उसके काबू में नहीं आई। बाप की मौत का साया हर वक्त उसके पीछे रहा। इतिहास लिखता है कि उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था और वो रातों को नींद में चिल्ला उठता था जैसे कोई खौफनाक मंजर देख रहा हो। करबला की मिट्टी का नाम उसके जुबान पर आते ही वो बेचैन हो जाता। कहते हैं उसने कभी कह दिया था कि मेरे बाप ने जिस जगह से खून निकाला था वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई। कुछ ही महीनों में अल-मुंतशिर की तबीयत बिगड़ गई। वो कमजोर होता गया और इतिहास कहता है कि उसे खुद उसके करीबी लोगों ने जहर दे दिया। जिस तरह उसके बाप का अंजाम उसके हाथों से हुआ था, वैसे ही उसका अंत भी अपने आदमियों के हाथों से हुआ। लोगों ने कहा यह करबला की जमीन का इंतकाम था, क्योंकि जिसने उस मिट्टी को हल से जोता था, अल्लाह ने उसे उसकी ही औलाद से जोड़कर मिटा दिया। अल-मुंतशिर की मौत के बाद अब्बासी सल्तनत कमजोर हो गई। हर कुछ वक्त बाद खलीफा बदलता, दरबार में नई साजिशें चलती और लोगों का यकीन सल्तनत से उठ गया। इतिहास ये भी कहता है कि जिन्होंने कभी करबला की मिट्टी को मिटाने की कोशिश की, उनकी अपनी कब्रों का नाम निशान भी बाकी नहीं रहा। मगर इमाम हुसैन का मकाम हर गुजरते वक्त के साथ और ऊंचा होता गया। हर दौर के जालिम का अंजाम एक सा रहा। बनु उमैया का यजीद हो या बनु अब्बास का, नाम एक जैसे हो सकते हैं लेकिन अंजाम हमेशा वही रहा। जुल्म ने हमेशा खुद को खत्म किया और हक ने हमेशा खुद को कायम रखा। आज जब करबला की जमीन पर नया कंस्ट्रक्शन होता है तो खुदाई में पुराने निशान मिलते हैं, तो लोग फिर याद करते हैं कि वो लाल मिट्टी सिर्फ रंग नहीं, एक गवाही है। वो याद दिलाती है कि कितनी बार लोगों ने इस नाम को मिटाने की कोशिश की, मगर हर बार करबला ने खुद को फिर से जिंदा कर लिया। इमाम हुसैन का नाम आज भी हर दिल में धड़कता है। हर मजलूम की दुआ में उनकी याद जिंदा है। करबला की मिट्टी आज भी लोगों के सरों की जीनत बनती है और उस पर हर बार एक ही पैगाम लिखा मिलता है, जुल्म कितनी भी बार आए, हुसैन हर बार जिंदा रहेंगे। इतिहास में हर जगह एक सबक छिपा है, ताकत हमेशा मोहलत देती है लेकिन माफ नहीं करती। जो जालिम करबला की मिट्टी को छूता है वो अपने अंजाम से कभी नहीं बच पाता। आज भी अगर कोई करबला की जमीन पर खड़ा हो तो वो हवा से आवाज सुन सकता है, वो आवाज जो सदियों से आ रही है, हक हमेशा रहेगा, जुल्म हमेशा मिटेगा। करबला की कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, वो याद दिलाती है कि जो भी सच के खिलाफ जाएगा वक्त उसे याद नहीं रखेगा, और जो सच के लिए खड़ा रहेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, नाम से नहीं किरदार से। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।